A very good morning to all of you. Today we will discuss the chapter number 12, Balance of Payments. In this chapter we will discuss about the major three topics. What is the meaning of the BOP account, Balance of Payment account? Then what are the different components of the BOP account? Means कि इसके एलिमेंट कौन कौन से हैं, इसमें कौन कौन से अकाउंट्स इंक्लूड होते हैं. In which we will discuss about the current account, capital account, and official reserve account. And last one topic will be there, that will be the equilibrium and disequilibrium in BOP. It means कि BOP balancing situation में है या नहीं है, and what will be the output of that situation, that will be known as the BOP deficit. So first one, today we will start from our first one topic, the meaning of BOP account, balance of payment account. The simple one thing is there, that every country is involved with the transactions done with the another one countries, with the rest one countries, we can say कि ओवरऑल वर्ल्ड लेवल पर एक कंट्री क्या करती है, ट्रांजेक्शन्स करती है. द थिंग इज देयर कि रेस्ट वन कंट्रीज के साथ, रेस्ट वन वर्ल्ड के साथ जितनी भी ट्रांजेक्शन्स एक कंट्री की करती है उसको एक पर्टिकुलर अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है. एंड द रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल दोज ट्रांजेक्शन्स इन वन particular account, that one account is known as the BOP account, the balance of payment account. As per the proper definition of the BOP account, we can call it that it is a statement of account which is showing all the monetary transactions of an economy, we can call, of a economy with the rest of the world during the period of an, particularly we can call the 1 year. कि BOP account कौन सा account हो गया, in which all the transaction which is mainly done with the rest of the world, with the rest of the countries, by an economy during a particular period of an accounting year or a particular period of a year, we can say. Now the question arises कि ये transactions कौन कौन करते हैं. There are mainly the simple parties, we can say individuals, firms and the government is there, जो ये transaction include transactions में deal करती है. और ये हमारी मेनली कैसे ट्रांजेक्शन्स है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स. नाउ द क्वेश्चन अराइज which kind of the transactions are there. These are mainly divided into the 4 subheadings. Headings लगा लो. The main thing is the parts we can call the transaction related to these things are mainly included in the BOP account. What are that? The first one, export and import of goods. Export and import of goods. Only the one thing, exports and imports of goods. अभी हमने services के exports imports नहीं बोले, right? We said that only the exports and imports of good. तो जनरली हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट की लैंग्वेज में हम इसे विजिबल ट्रेड भी कहते हैं. ओके क्योंकि वहां पर क्या विजिबल ट्रेड मींस, यहाँ पर हमने क्या बोला कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स हो रहा है. एंड गुड्स आर दैट काइंड ऑफ थिंग्स which can be seen, which can be touched, कि वो विजुअली मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू another place. That's why it is known as visible trade. Second one is the exports and imports of services. Second one is the exports and imports of services. It is called the invisible trade. Why? Because the services cannot be seen, cannot be touched, right? Whenever they just cross the borders, it cannot be seen. Okay, the third one term is there, that is the international sale and purchase of financial assets. Financial assets means like the shares, bonds जो होते हैं, simply इनको sale purchase करना international market में, that will also be included in the BOP account. And last one is the international sale and purchase of the real assets. Real assets means like the plant and machinery, जो चीजें एक्चुअल में assets है जो मूव करती हैं. अब शेयर्स को हम क्या कहेंगे, दैट इज अ पेपर वर्क, राइट? तो वो क्या हो गया,
That is the international movement or the sale purchase of the financial assets. रियल असेट्स की जो एक्चुअल में मूव करती है, बाउंड्री को क्रॉस करती है, बॉर्डर क्रॉस करती है, दैट इज नोन एज द रियल असेट्स. So simply in the case of the balance of payment account, four kinds of things are included: export and imports of goods, exports and imports of services, international sale and purchase of financial assets, international sale and purchase of real assets. ओके. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जब अगर हम एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं या इंपोर्ट्स कर रहे हैं, आप बताइए, तो फॉरेन एक्सचेंज किस फॉर्म में मूव करेगा? द सिंपल थिंग, अगर हम नो डाउट एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं या इंपोर्ट्स कर रहे हैं तो फ्लो तो होगा फॉरेन एक्सचेंज का, वो हमारी कंट्री में होगा या हमारी कंट्री से बाहर होगा. सो सिंपली वी कैन से देयर कि फ्लो जो है वो हमारी कंट्री में कब कब होगा, अगर हम गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या बाहर की फॉरेनर्स जो है हमारे फाइनेंशियल और रियल असेट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं. इफ वी आर सेलिंग आवर गुड्स एंड सर्विसेज, वी विल गेट द मनी इन रिटर्न ऑफ दैट. ऑन द ऑपोजिट साइड, if the foreigner are purchasing our assets, either the financial assets or the real assets, then there will also be the inflow of the foreign exchange in our economy. On the opposite side, अगर हम कहें कि हमारी कंट्री से बाहर कब जाएगा फॉरेन एक्सचेंज टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को इंपोर्ट करते हैं और जब हमारे रेजिडेंट जो हैं वो बाहर की इकोनॉमीज के अंदर, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दे आर जस्ट गोइंग टू invest the money in the form of the financial assets and the real assets. तो बीओपी अब क्या काम करता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट जस्ट रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू द फॉरेन एक्सचेंज. ठीक है. एज लाइक सिमिलर P&L अकाउंट वी कैन से रिसिप्ट्स जो है वो क्रेडिट आइटम्स में आ गई, पेमेंट्स जो है वो डेबिट आइटम्स में आ जाती है. तो ओवरऑल इट जस्ट शोज द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ द economy with the rest of the world. This is the balance of payment account. After that, we will discuss about the next one concept, that components of the BOP account. The components of the BOP account is mainly classified into three terms: the current account, capital account, and official reserve account. Current account, capital account, and official reserve account. Now we will discuss in detail about the current account, capital account, and official reserve account. The first one is there, that is the capital account. So capital account means the capital account is mainly related to the that kind of transactions कि जो एक इकोनॉमी की असेट्स और लाइबिलिटीज को इम्पैक्ट नहीं करती. Means as like in previous sense in government budget we have studied that the revenue nature item do not impact on the assets or the liabilities. So mainly the current account is related to that kind of transaction which do not impact on the assets or the liability status of an economy. ना तो वो कोई असेट्स को इंक्रीज करती हैं, ना ही वो कोई लाइबिलिटी को रिड्यूस करते हैं. ओके. सो इट डजंट क्रिएट एनी काइंड ऑफ द क्लेम्स इन फ्यूचर. सो सिंपली हियर वी कैन कॉल करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स रिसिप्ट एंड पेमेंट्स ऑफ foreign exchange on account of such transaction which do not impact the assets and liabilities status of a country in relation to the rest of the world. And liability and assets of a country इन पे कोई impact नहीं आता. So simply we can call that current account transaction do not give rise to the future claims. Okay, now the question arises, what are the components of the current account? The main one components, see this. The first one is there, that is the exports and imports of goods, which I told you that this is known as the visible trade. Exports and imports of goods is termed as the merchandised or visible trade. Visible क्यों बोलते हैं हम इसको? क्योंकि गुड्स जो है वो टेंजिबल है एंड कैन बी सीन. जब आप बॉर्डर क्रॉस करते हैं वो, तो उनको देखा जा सकता है, राइट?
और एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट सिंपली एक ऐसी चीज है जो कोई भी ना तो असेट क्रिएट करता है और ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस करता है, सिंपली ट्रांजैक्शंस चल रही हैं. On the opposite side, second one is there, that is the export and import of services. Exports and imports of services. Here it can be categorized into two terms. कि कौन कौन सी सर्विसेज होती है. देखिए सबसे पहले हम क्या कहेंगे, द एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ द सर्विसेज आर नोन एज इनविजिबल ट्रेड. रीजन, क्योंकि सर्विसेज जो है वो टेंजिबल नहीं है, कैन नॉट बी सीन जब इसको बॉर्डर क्रॉस करते हैं. जैसे लगाइए इंश्योरेंस सर्विसेज है, बॉर्डर के क्रॉस दी जा रही है तो आप इसको देख नहीं सकते, राइट. सो दीज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टर्म्स, फैक्टर सर्विसेज एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज. नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट डू यू मीन बाय द फैक्टर सर्विसेज. फैक्टर सर्विसेज के नाम से पता चल रहा है जो फैक्टर पेमेंट से रिलेट होगी या फैक्टर इनकम से रिलेट है. मींस कि जो हमारा लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर होता है उनको जो पेमेंट दी जाती है उनकी सर्विसेज के बदले में, दैट इज नोन एज द फैक्टर सर्विसेज. सो इट विल बी मेनली रिलेटेड टू द फैक्टर इंक. मींस कि अगर एक फैक्टर पेमेंट कर रहा है तो दूसरे बंदे के लिए वो इनकम है. इन्वेस्टमेंट इनकम, इन्वेस्टमेंट मींस वही लैंड के ऊपर अगर पैसा लगाया. कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मींस सैलरीज वेजेस के ऊपर जो पैसा लगाया. एज वेल एज इन्वेस्टमेंट इनकम में हम क्या कह रहे हैं, कौन सी इनकम हो गई, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट. Simply four things are there: rent, interest, profit and salary wages. तो वो हमने टू कैटेगरी में मेन हाईलाइट किया. इन्वेस्टमेंट इनकम इंक्लूडेड द रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, एंड रेस्ट वन इज द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इंक्लूडेड द wages or salaries. So factor income will be equal to the compensation of employees plus investment income, rent, interest and profit. On the opposite side, the second one is the non-factor services. Non-factor services में factor services के बजाय जितनी भी हमारी सर्विसेज रह जाती हैं वो सारी इंक्लूड कर दी जाती है. लाइक वी कैन से इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग सर्विसेज हो गया, ये क्या है, दीज आर द नॉन फैक्टर सर्विसेज. Related to these are also mainly recorded under the head of the receipts. कि सर्विसेज को हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो रिसिप्ट्स हो गए, और जब हमने सर्विसेज को इंपोर्ट किया है तो वो पेमेंट्स देनी पड़ेंगी उसकी जगह. द थर्ड वन component of the current account is the current transfers. Current transfers, the first one was there, that was the exports and imports of goods. Second one, exports and imports of services. Third one is their current transfer. And current transfer means एक ऐसे ट्रांसफर विच आर यूनिलेटरल. द थिंग्स विच आर मेनली यूनिलेटरल मीन्स द वन साइडेड. ऐसे ट्रांजेक्शन्स हो गए जो मेनली हमने वन साइडेड किए, फ्री में किए, उनके बदले में कुछ नहीं मिलेगा. इट इज मेनली इंक्लूडेड ऑल दोज ट्रांजेक्शन्स विच आर रिलेटेड टू द गिफ्ट्स, ग्रांट्स एंड रिमिटेंस. कि मेनली ऐसे ट्रांजेक्शन्स हो गए जो फ्री हो गए, इसमें मेनली इनको क्या माना जाता है, दीज आर ट्रीटेड एज द एलिमेंट्स ऑफ द इनविजिबल्स. ओके, तो करंट ट्रांजैक्शन में वो सारी ट्रांजैक्शंस आ जाएंगी जो वन साइडेड होती हैं, जिसमें कुछ डबल साइडेड नहीं होता. सी दिस, जो करंट ट्रांजैक्शंस है हमारे बीओपी के अंदर, दैट इज कंसिडर्ड एज द इनविजिबल. मींस कि नॉन फैक्टर सर्विसेज में इंक्लूड होते हैं ये. ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो चीजें आ जाएंगी तो इनविजिबल्स में हमारे पास मेनली क्या क्या इंक्लूड होगा, the exports and imports of factor services, exports and imports of the non-factor services, and money transactions related to the current transfers. So we can call BOP, capital account transaction can be classified into two terms, visible and invisible. तो visible में आप क्या लिखेंगे, exports and imports of goods only. और इनविजिबल में क्या आ जाएगा, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ फैक्टर सर्विसेज, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, and the mainly transactions related to the current transfers. So invisible in BOP, monetary transaction related to the exports and imports of services plus monetary transaction related to the current transfers.
और एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज में क्या क्या आ जाएगा? फैक्टर सर्विसेज एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज। This is the chart of the current account also. Okay, the current account simply we can say a component, export of goods, imports of goods and invisible. Okay, अब invisible exports of goods and import of goods, simple we can say exports and imports of visible item. On the opposite side invisible, invisible में income आ गई जिसमें क्या आ जाएगा? फैक्टर सर्विसेज, मीन्स मॉनेटरी ट्रांजेक्शन ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ फैक्टर सर्विसेज। सेकंड में आ गया नॉन फैक्टर सर्विसेज, कि इस पे कौन से आ जाएंगे? विच एवर द ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द नॉन फैक्टर सर्विसेज। इन द थर्ड दिस इज द करंट ट्रांसफर, gifts, grants and worker remittance means the unilateral transfer or all those transactions which are mainly done for the free work, no any. So current account simply records all the transactions related to the rest of the world. जो भी पेमेंट्स होंगी उसे डेबिट साइड पे लिया जाएगा और जो भी रिसिप्ट्स होंगी उसे क्रेडिट साइड पे लिया जाएगा। और नेट विल बी द डिफरेंस विल बी ऑफ द receipts and payments. So here we can estimate the balance related to the current account like this. See this, how to calculate the balance. तो बैलेंस करंट अकाउंट से रिलेटेड हम कैसे एस्टिमेट करेंगे? देखिए इसमें हमारे अलग अलग कैटेगरी आ जाएगी। सबसे पहले ट्रेड बैलेंस, मर्चेंटाइज बैलेंस, इट इज सिंपली रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। ट्रेड बैलेंस में आपका सिंपली क्या आ जाएगा? एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स को लेस कर दिया जाएगा। अब डेफिसिट कब आएगा? जब हमारे इंपोर्ट्स ज्यादा होंगे। और सरप्लस कब आएगा? जब हमारे एक्सपोर्ट्स ज्यादा होंगे। सेकेंड वन, गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। इन द गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स, इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आ जाता है? नॉन फैक्टर सर्विसेज को ऐड कर दिया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस में। मीन्स गुड्स के अकॉर्डिंग तो एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स विल बी देयर, और सर्विसेज में ओनली नॉन फैक्टर सर्विसेज को इंक्लूड किया जाएगा। इट मीन्स एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स प्लस एक्सपोर्ट्स ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज माइनस इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स प्लस इंपोर्ट्स ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। सो ट्रेड बैलेंस plus balance of account of non-factor services will give you the goods and services balance. After that invisible balance, तो invisible में हमारी 3 टर्म्स आती हैं। कौन कौन सी? नॉन फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज और करंट ट्रांसफर। That is known as the balance of invisibles. And last one, the current account balance. The current account balance is mainly included the trade balance and इनविजिबल बैलेंस। ट्रेड मींस अल्टीमेटली चारों चीजें आ जाएंगी कैटेगरी के अकॉर्डिंग। करंट अकाउंट में ट्रेड बैलेंस में सिर्फ हमारे गुड्स का बैलेंस होता है, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ गुड्स ओनली, और ट्रेड प्लस इनविजिबल में हमारी रेस्ट वन तीनों चीजों का होता है। तो करंट अकाउंट कैसे बनता है? ट्रेड बैलेंस प्लस इनविजिबल बैलेंस। सो सिंपली जब हम ट्रेड बैलेंस एस्टिमेट करते हैं तो सिर्फ हम गुड्स को कंसीडर करते हैं, और जब हम गुड्स एंड सर्विसेज के बैलेंस को कंसीडर करते हैं तो हम गुड्स और नॉन फैक्टर सर्विसेज को कंसीडर करते हैं। इनविजिबल में 3 टर्म्स, नॉन फैक्टर सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज एंड करंट ट्रांसफर, and the current account balance will be trade balance plus invisible balance. Like this, the example is there. In this example, they have given us एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, इनविजिबल्स। इनविजिबल्स में तीनों आ गई, नॉन फैक्टर, इनकम एंड ट्रांसफर्स। अब हम इनमें कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए सिंपल थिंग, सबसे पहला ट्रेड बैलेंस। तो ट्रेड में सिंपली आपने क्या करना है? एक्सपोर्ट्स एंड में से इंपोर्ट्स को लेस कर दो। दिस इज द ट्रेड डेफिसिट, क्योंकि नेगेटिव आ गया। सेकेंड वन, गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। तो गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहला तो ट्रेड बैलेंस प्लस में ओनली नॉन फैक्टर सर्विसेज 77,562, ओनली इसको हम कंसीडर करेंगे।
So trade balance plus balance on account of non-factor services, that is the goods and services balance. थर्ड हमारा आ जाएगा इनविजिबल. तो इनविजिबल में अब हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे? ऑल दीज थ्री आइटम्स. थ्री आइटम्स मीन्स द सिंपल वन थिंग वी कैन से, जैसे कि हमारा नॉन फैक्टर सर्विसेज, इनकम और ट्रांसफर तीनों ऐड हो जाएंगे. दिस विल बी कंसीडर्ड एज द बैलेंस ऑफ इनविजिबल. बैलेंस ऑफ invisibles, like this: factor services, non-factor services and transfer. And the last one will be included the current account balance, जिसमें आपका trade balance और invisible दोनों include हो जाएंगे. ओके. सो एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को हम पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि उससे क्या होता है? इनफ्लो होता है. इंपोर्ट्स को नेगेटिव लिया जाता है क्योंकि उससे आउटफ्लो होता है. जितने भी रिसिप्ट्स होंगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव आइटम, और जितनी भी पेमेंट्स होंगी दैट विल बी कंसिडर्ड एज नेगेटिव आइटम्स. So this was the mainly topic related to the current account, how to calculate the current account balance and the trade balance, and the different components of the current account was there.